Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 25. Till now we have completed our seminars on program management and business analysis and project portfolio management and then project management office PMO. We had 5 sessions on program management and then quite few sessions on business analysis and then we had 1 session on portfolio management and 1 session on project management office. We could have arranged more sessions, but the point is to give you as much as we can through this course. And now we are proceeding towards another very good seminar that is about earned value management. The people who have already taken my course 706 Development and Management of Complex Project DPCM, they have already attended such seminar before in their respective course. But the purpose of redoing this in this course is that we are going to start a very interesting seminar very soon. So we want to revise a few things related to that seminar. So we are having earned value management, and then we will talk on network diagrams and estimates before we go to one very important training, hands-on training about project management things. So but this session is about earned value management, and before we start with this lecture, we will have a summary of the previous lecture. Other day we were talking about project management office PMO and what is PMO, and that is organizational unit which is actually is there to have proper coordination between the project interface with the top management interface. So that is kind of one layer above the projects and in between the top management and the project authorities. And then we had discussed in good detail, we have taken some time to elaborate the functions of matured PMO. Then there are 3 types of PMO which we have discussed. There may be like a number of types of PMO according to the depending upon the literature and the organization, but we had talked about 3 types of PMO. And then we had also talked if what kind of PMO will be good for us and the basis on which we can select one PMO for our organization. We had discussion on that. Then how to set PMO and then stages of PMO during implementation. We had discussion on that as well. And in the last we have also talked about the software support in PMO, so like Primavera P6 and enterprise project management of Microsoft can be used in ensuring proper PMO's function and supporting those functions. So this was very brief what we had discussed the other day. Now let's start with today's lecture, and this is interesting thing. So this is kind of a revision of the things we have acquired in previous semesters and other courses, and we will build something on this revision afterwards. So what we need always from a project. So we are doing this project, and every time
we want to see if how our project is functioning, how our project is working or behaving. So at one point in time, we want to have that very information available with us. So we go for the feedback and monitoring. So feedback is critical to the success of any project. So we can, if we don't have a feedback, how can we correct a problem? But if we are having a feedback and something is going bad, that does not happen, that didn't happen as of this point, but that is leading towards something. So if there is an effective system of feedback, we can actually have very good thing intact over there, and so we can restrict that thing, and we can control that thing. So timely and targeted feedback can enable project managers to identify problems early and make adjustments that can keep a project on time and on budget. So early identification is very useful. The problems identified earlier are having less costlier solutions. अगर हम शुरू में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो भी उसका हम हल करेंगे वो हमें सस्ता पड़ेगा, वो हमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा, और ये हमारी टीम को हेल्प करेगा कि वो प्रोजेक्ट को टाइम के ऊपर और बजट के अंदर रह करके कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा. So this is about feedback and project monitoring. Remember, monitoring is having some equivalence in project management. When we used monitoring, monitoring is actually equivalent to measuring in project management body of knowledge as of PMI. So for project monitoring, we mean we are actually measuring the stuff over there. So this provides an early warning signal for prompt corrective action. Or more precisely, very preventive action also. Something is going bad, something is going out of control of the team. Then earned value management is that thing कि जो हमें फौरन बता देती है कि हमारी क्या चीज़ गलत हो रही. और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग उसका अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दैट टूल. सो हमें जल्दी क्यों चाहिए होती है, अर्ली वार्निंग क्यों चाहिए? क्योंकि बुरी खबर कभी बता के नहीं आती. सो बैड न्यूज़ डज नॉट एज वेल and still time to recover. So if we are having early warning, so we can actually recover from that. And as I've told you, the early recovery, early identification leads to recovery. And the more time we will spend, then there won't be recovery. That will be a kind of, rehabilitation thing. So rescue and recovery is only effective if we are doing things as early as we can. And then we can actually request for additional funds on time as early as possible. And then a project control focuses mostly on monitoring and reporting the execution of project management plans related to scope, schedule, cost, along with quality and risk. And hence project control is a process for keeping work performance and results within tolerable range of the work plan. So over there you can see this control chart, and this is the line which is the main thing which we want to achieve. Now that is the line, and these are the control limits we have applied. There may be some things like that, the specification limits as well, but we have this upper limit, upper control limit and lower control limit, and over there we can have lower specification, and over there we can have high upper specification limits.
So if we are having this trend, and there are like one process who's behaving like that, second is behaving like that, third is behaving like that. So that process has already crossed the upper control limit, and this is getting a bit stabilized. But you know, the trend is something like that. Over there, but this thing is troublesome. You know, that is going just like that, right? So and this thing is again is having some problems, so we can have this a bad trend as well. So the things have been under control by that point in time, but this is not in right direction. So we can actually correct the process, or we can have a few things which we can do at this point in time. So this is a whole concept of project controlling. It is about measuring the things. It is about enhancing the chances that we can actually take good actions at appropriate time. This is one of the. So earned value management, EVM, is a project performance measurement technique that integrates scope, time, and cost data. So that is one very, very good tool available with us, जो कि हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को बहुत सारे पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है. ये बेसिकली स्कोप को, टाइम को, कॉस्ट को, ये सारे पैरामीटर्स को ये इंटीग्रेट कर देता है. ये कि हमारी जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, तीन जो मेजर पैरामीटर्स हैं, और उसके बाद फिर ये फोरकास्टिंग कर सकता है, ये वेरिएंस निकाल सकता है, और ये इंडिसेस की बात करता है. सो अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज management with headlights on, and it increases the visibility in future about the performance of the project. There are limitations to this method, but this is one very good tool to have with us. And the whole concept revolves this thing. We plan what is our scope as of this date, what is our schedule, like how much time it will take for completing that project, and what is the cost as of this date. So we are having a plan. We are having three things over there, and then we execute that plan. We work and we keep a record, and we measure and we analyze the data, and we report back. So when reports are generated, so we get from this phase again to this phase. Either we execute, we keep executing and keep recording, or we need to take some changes in plan, some corrective actions and stuff like that, and hence this process goes on like that. So in earned value management, there are a few steps which we need to observe all this time. And first step in earned value management system is to develop a WBS. So WBS is work breakdown structure, stands for the work breakdown structure, and is the decomposition of the project. So we decompose our project into manageable work elements, and those work elements are further divided into further smaller elements, and those elements are further divided into activities. So WBS is the structure which is having high level work elements, and which are above the activity level, and this shows like the broader concept of work which we need to plan. So just like that, if we are having a project or construction of a house over there, we can see, and that is divided over there in 5 control accounts, that is land acquisition and design, and civil works, and electric works, and plumbing works, and
finish works. So this level may be called as control accounts, and even maybe called as work packages, depending upon the level which organization has set. And this control account is further decomposed into 4 work packages, and this control account is further divided into 9 work packages, and this control account is further divided into 4 work packages, 4 work packages, and 3 work packages. This control account. So if you can see, we are having a number over there, 1.3 and 1.3.4. So this is WBS code. So 1 is for project, 1.3 is the first level, 1 point, and 1.3.4 is second level of work packages level. This is how. Now these work packages are further divided into activities, but this WBS is created in scope management part of project management. WBS is called a very good team building tool. And why this is so called? Because when we start planning, the first step of planning is we plan how to plan the things. So when we plan, like how to plan the schedule, how to plan the cost, how to plan the scope, how to plan the risk, how to plan the communication, and so on and so forth. So then the second step is we collect the detailed requirements, and we use different tools and technique for that, and then we develop a scope statement. But then we have project team with us. This is not the final team, but this is the team who is going to start the work, and this team develops the WBS, and while they are developing, they are discussing like if something should be in work package, or something should be declared as a control account, or something should not be placed as a work package because that is activity level, or something should be placed though that the size is smaller, but that can be placed in work package as work package. They may have comments, they may have discussions, they may have arguments. And after they have done that decomposition, they may enjoy they can create the fun while decomposing the things, and that gives them belief of achieving something. The project is not done as such, but they've started by analyzing it. Okay, so construction of a house, oh, big project, but then fixtures in the house, that seems a kind of tiny thing. Now I can do that fixtures. I can get those connections done from a plumber. I can get plumbers to do piping thing, and very fine. So, and hence we will do plumbing works. So we can do that plumbing works or package. So the other guy may speak like, okay, I can get it done plastering. That is very simple job. And flooring, I can arrange all the tiles and stuff like that. So flooring is on me as well. And eventually we reach to civil work. Okay, civil works is my responsibility then. And team actually gets a very good confidence point. Okay, we can achieve this project, so WBS is such thing. So WBS is created in scope management after collect requirement and develop scope statement, create scope. We create WBS then. So that is the process after developing scope statement. And then we can develop a scope baseline, which comprises of scope statement, WBS, and WBS dictionary. Now WBS dictionary is what? So over there we are having this ducting or conduiting over there, and ducting over there as well. So ducting means, so what this ducting mean and what this ducting mean. So these two ductings need to be explained, and what do I mean by roofing,
what is the difference between roofing and flooring, that needs to be described in some document. So that document which describes the elements of a WBS is a WBS dictionary. So WBS, we are having work elements, we are having codes, and we are having dictionaries. So this is all about WBS, and this is the first step in EVMS. Then all of the work packages we have decided needs to be assigned to the workforce for execution using the organizational breakdown structure, OBS. So you are going to do that. Mr. Umar needs to do work package control account number 1. Miss Tahira needs to do package number 3, and Miss Aima needs to do package number 4, and Mr. Hamid to do package number like 17 and stuff like that. So everybody is, and then they can be having in charge, and different team members, they can distribute the work among them. So if somebody is good with civil work, so he'll be assigned with all the civil works stuff, and other people will be. So this is the step number 2. We need to integrate WBS and OBS, and hence we will have a very good control of the performance of the people over there. And then after creating WBS and after creating OBS in HR, we then go to time management, and we can have like second process of time management, that is define activities, and we can define activities. And let's say we have through define activities, we have also done the relationship after that sequence activities, and then we have estimated the resources and hence activity durations over there. So activity number 1 is having duration of 2 months. We can see that. So that is 2 months, and activity 2 is having like duration of 4 months, and activity 3 is having 2 months, 1 month for activity 4, and 4 months for activity 5, and 6 months for activity 6. And then we have estimates available with us for every activity, and after estimating we can have budgets with us. So this activity number 1 is having budget of 12, this activity is having budget of 48, this activity is having budget of 28, and this is having 18, and this is having 28, and this is having 16. So total 150 is available with us. So we have developed now the durations, and now we want to distribute this budget to that activity, and we assume that 50%, as this activity is 2 months, so we are having like they will be, the resources will be consumed and cost will be incurred proportionally at pro rata basis. So first month they will consume 6 rupees, and second month they will consume 6 rupees or 6 million, whatever the cost is. जबकि ये हमारे पास 48 रुपये है, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि पहले महीने में ये 8 रुपये खर्च करेगा, दूसरे महीने में ये 12 रुपये खर्च करेगा, तीसरे महीने में ये 16 रुपये खर्च करेगा, फिर 12 रुपये खर्च करेगा. अब इसका जो ट्रेंड है कि शुरू में कम है, फिर ज़्यादा हो गया, 4 के यूनिट से बढ़ रहा है, पहले 8 था, 8 के बाद 12 और फिर 16 और फिर कम हो गया. तो इवेंचुअली इसकी अपना एक ट्रेंड है. इसका अगर हम ट्रेंड फॉलो करें तो समथिंग लाइक दैट कि शुरू में ये बहुत ऊपर गया, फिर थोड़ा सा मेंटेन हो गया, और फिर जो है वो नीचे आ गया. सो ये बेसिकली हो सकता है. इसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि हमारी तीसरी एक्टिविटी कि शुरू में तो उसने 7 रुपये खर्च किए, और उसके बाद 3 टाइम्स उसने सेकेंड मंथ में किए. ये 1 महीने में है तो ये सारा उसी में खर्च होगा. फिफ्थ जो एक्टिविटी है वो उसमें हम 4, और याद रखिए अभी हम प्लानिंग स्टेज में हैं, अभी हम एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो 4 रुपये ये पहले महीने में खर्च करेगा, फिर अगस्त में 8 रुपीज़ खर्च करेगा, फिर सितंबर में 10 और 6, और इसी तरह ये जो हमारी 6th एक्टिविटी है 16 रुपये है, तो 8 रुपये फर्स्ट और सेकंड में भी 8 रुपये. अब हमारा 12 महीने का प्रोजेक्ट है,
और उसके अंदर पहले महीने में अगर मैं इसको सम कर लूँ तो इस पूरे महीने में मेरे जो पैसे खर्च होंगे वो सिर्फ होंगे 6 रुपीज़, सो दैट इज़ ओवर देयर। और ये इस पूरे फरवरी के महीने में 6 + 8 इज़ 14, और इस पूरे महीने में 12, इस पूरे महीने में 16, इस पूरे मई के महीने में 12 + 7, सो 19, 21, 18 + 4 22, 8, 10, 6, 8, 8। सो ये मेरे बेसिकली समीशंस जो हैं वो आ गए। अब जो अगला स्टेप मुझे करना है जब मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैंने टाइम सबसे पहले लगाया था इसका कितनी एक्टिविटी का, फिर उसके बजट निकाले थे, और अब मैंने यहाँ उनको मंथ की समीशन कर ली। अब मुझे कम्युलेटिव निकालना है। सो जनवरी के महीने में मेरी कम्युलेटिव है 6, और फरवरी में 6 + 14 20, 20 + 12 32, 32 + 16 48, और 48 + 19 67, and 67 + 21 88, 88 + 22 110, 110 + 8 118, 118 + 10 128, 128 + 6 134, 134 + 8 142, and 142 + 8 150। सो ये बेसिकली, और ये अगर आप गौर करेंगे ये 150 भी सेम है जो हमारा बजट था। सो दिस इज कॉल्ड this figure is called something that is called BSC. We are going to explain that as well. So 150 is there. So बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें करते हैं वो है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर, वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन को सेट करना या एस्टैब्लिश करना। सो जो हमें इसके लिए स्टेप्स करने हैं वो अभी हम देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क नीड्स टू बी लॉजिकली शेड्यूल्ड, जो कि हमने कर लिया, और उसको इंडिपेंडेंट हमने देखा। हमने ये नहीं देखा कि क्या कॉस्ट है या क्या रिसोर्सेज है, हमने उसको शेड्यूल एक अलहदा एक्सरसाइज के थ्रू किया। उसके बाद बजट हमने दूसरे एक्सरसाइज के थ्रू किया, और हमने उसको फिर कंबाइन कर दिया। And resourced in a work plan, and the work scope, schedule and cost need to be integrated and recorded in time-phased budget known as performance measurement baseline. So this line which we have drawn over there is a PMB. And how do we draw that? Now this is very simple. यहाँ आपको याद होगा जब हम ये ग्राफ बना रहे थे तो ये हमने 6 कैसे कैलकुलेट किया था, ये 20 कैसे कैलकुलेट किया था, ये 32 कैसे किया था, 48, 67, ये हमने सारे कैलकुलेट किए थे अप टू 150। अब हमें करना क्या है कि इस साइड के ऊपर हमारी कॉस्ट आ जाएगी और इस साइड के अंदर टाइम आ जाएगा। सो पहले महीने में मुझे कितने पैसे चाहिए थे, आप उधर देख सकते हैं, वी नीड 6। सो 6 के ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया यहाँ 6। उसके बाद दूसरे महीने में कितना चाहिए था, 20, फिर 32, फिर 48, फिर 67, फिर 88, और 7वें महीने में मुझे चाहिए था 110। अगस्त में या 8वें महीने में मुझे चाहिए था 118, सितंबर में मुझे चाहिए था 128, अक्टूबर में मुझे चाहिए था 134, और नवंबर में मुझे चाहिए था 142, और आखिरी महीने में 150। सो ये मुझे वो रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए थी, और टाइम के साथ मुझे ये चाहिए थी। तो अब मैं अगर इसको एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो बेसिकली ये मेरी लाइन आ जाएगी जिसको मैं प्लान वैल्यू लाइन बोलता हूँ, या जो कि मेरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन है। अब जो 6 है यहाँ, ये प्लान वैल्यू है पहले महीने की, और ये 88 जो है ये प्लान वैल्यू है मेरी छठे महीने की, और अगर 134 लूँ तो ये मेरी प्लान वैल्यू है 10वें महीने की, और अगर 118 लूँ तो ये मेरी प्लान वैल्यू है 8वें महीने की, और 20 जो है वो मेरी प्लान वैल्यू है दूसरे महीने की। सो इन दिस फैशन आई कैन हैव 150 आफ्टर, सो ये मेरी प्लान वैल्यू है 12वें महीने की। ये बेसिकली कम्युलेटिव खर्चा जो उस वक्त तक होगा। सो लेट्स समराइज द स्टेप्स, और फिर हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। पीएमबी तो हमें बनानी आ गई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन हमने उसको थोड़ा सा एप्रीहेंड कर लिया कि वो कैसे करते हैं। अब हम बिफोर के हम इससे आगे चलें, हम इसकी समरी देखेंगे कि अभी तक हमने क्या कर लिया और हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। जो हम पीएमबी को पहली तो स्टेप है उसको हमने डेवलप करना है, एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद फिर हमने मेजर करना है और एनालाइज करना है परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेसलाइन।
So first is decompose work scope to manageable level, कि हमें अपने प्रोजेक्ट को मैनेजेबल लेवल तक डिकम्पोज करना है, उसका हमें WBS क्रिएट करना है. असाइन अनएम्बिगियस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें OBS जो है जो हमारा प्रोजेक्ट का है वो हमने क्रिएट करना है. और उसके बाद फिर हमें टाइम फेस्ड बजट फॉर ईच वर्क टास्क वो डेवलप करना है. उसके बाद हमने एक अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट की टेक्निक जो है वो सिलेक्ट करनी है कि किस तरह हमने वो जो अगर हमारी 12 रुपए का खर्चा था और 3 महीने की एक्टिविटी, तो कैसे वो होगा, और अर्नड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ PMB थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जो भी अप्रूव्ड चेंजेस आएंगे वो उसमें आ जाएंगे, लेकिन हमने इंटेग्रिटी जो है वो PMB की वो जो है वो मेंटेन करनी है. उसके बाद मेजर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेसलाइन, जो हमारी बेसलाइन अब सेट हो गई है जिसको हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन कह रहे हैं, उसको हमने मेजर करना है, उसको हमने एनालिसिस करना है और उसकी परफॉर्मेंस हमने निकालनी है. सो रिकॉर्ड रिसोर्स यूसेज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो भी रिसोर्स यूसेज है वो हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान दौरान करना है. ऑब्जेक्टिवली मेजर द फिजिकल वर्क प्रोग्रेस, क्रेडिट EV अकॉर्डिंग टू EV टेक्निक्स, analyze and forecast cost, schedule performance and report performance problems. and so सबसे पहले हमने ये करना है कि जो भी हमारा रिसोर्स यूज हो रहे हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान, अगर हमें एक दीवार बनानी है घर की, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. हमें उसमें ईंटें चाहिए होंगी, या हमें सीमेंट ब्लॉक्स, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का है, हम ईंट ले लेते हैं. तो ईंटें हमें चाहिए हैं. ईंटों के अलावा हमें क्या चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें सैंड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें वो मेसन्स चाहिए हैं, हमें लेबरर्स चाहिए, हमें साइट इंचार्ज चाहिए, जो कि सारे ये यूज़ होते हैं. इसके अलावा हमें मिक्सर चाहिए. तो ये जब हम सारी चीज़ें हमने एक लिस्ट डाउन कर लिया, फिर हमें ये भी पता है कि कितनी देर के लिए चाहिए था और एक्चुअली ये लोग कितना काम कर रहे हैं. तो हमने इन सारी लाइक हमें पता था 6 मैसन्स चाहिए और 10 दिन के लिए चाहिए. अब 7 दिन तक हमने 6 मैसन्स लगाए हैं और उनका हमें पता है कि वो 7 दिन उन्होंने काम किया हुआ फॉर 8 आवर्स अ डे. उसके बाद वी नीड टू ऑब्जेक्टिवली मेजर द फिजिकल वर्क प्रोग्रेस. फिर हमें जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसको हमें मेजर करना है, खुद से ऑब्जेक्टिवली देखना है कि जो भी हमारे काम की प्रोग्रेस है, फिजिकल काम की, वो क्या चल रही है, कितना काम हो चुका है. अगर हमने 1 मीटर हाइट की या 2 मीटर हाइट की या 3 मीटर हाइट की वॉल बनानी थी तो अभी तक और 100 मीटर लंबी बनानी थी, तो 3 मीटर हाइट की अभी तक 50 मीटर बनी है, तो इसका मतलब 50% काम हमारा कंप्लीट हुआ है. देन क्रेडिट अर्नड वैल्यू अकॉर्डिंग टू EV टेक्निक, जो भी हमने EV टेक्निक ऊपर फैसला किया था कि वो हम यूज़ करेंगे, तो वो फिर हम उसको क्रेडिट करेंगे. एनालाइज एंड फोरकास्ट कॉस्ट शेड्यूल परफॉर्मेंस, और फिर जब ये हम EV क्रेडिट कर लेंगे तो फिर हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हुए हम जो फ्यूचर की कॉस्ट और शेड्यूल है उसकी परफॉर्मेंस को हम जो है वो एनालाइज और हम फोरकास्ट कर सकते हैं. And then we need to report performance problems and or take actions. फिर हमें इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो चीज़ डिफाइन होती है उसके 3 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी EVMS सिस्टम जो है वो बेस करता है. वो है प्लान्ड वैल्यू, वो है अर्न वैल्यू, वो है एक्चुअल कॉस्ट. प्लान्ड वैल्यू की हमने थोड़ी सी बात की है आगे कि जो भी हमने प्लान किया. अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे. नाउ प्लान्ड वैल्यू क्या चीज़ होती है? प्लान्ड वैल्यू डिस्क्राइब्स हाउ फॉर अ लॉन्ग प्रोजेक्ट वर्क इज सपोज टू बी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल, कि हम 6 महीने पे कहाँ होंगे, 4 महीने बाद कहाँ होंगे, तो उस 4 महीने में हम कितना खर्चा कर चुके होंगे. एक हमें पता है आज कि हमारा घर बनना है 6 मिलियन में, ये 60 लाख रुपए में, और वो हमारा घर साल बाद बनना है, तो हमें पता है उस वक्त तक हमारा 60 लाख खर्चा आएगा. लेकिन
आज जो आज का दिन है उसमें हमारा अगर हम 60 लाख का कर रहे हैं 12 महीने के बाद, तो 6 महीने बाद क्या खर्चा होगा हमें, ताकि हम अकॉर्डिंगली वो उतने फाइनेंसेस अरेंज कर सकें, ताकि हमें पता हो कि हमें ये फाइनेंसेस चाहिए हैं. एंड also known as the budgeted cost of work schedule, BCWS. Planned value is the planned cost of total amount of work schedule to be performed by the specific point in time or by some milestone date. Planned value को हम budgeted cost of work schedule भी कहते हैं. So it is a numeric reflection of the budgeted work that is scheduled to be performed, and it is the established baseline, also known as the performance measurement baseline PMB, जो भी हमने डेवलप भी की, against which the actual progress of the project is measured. So planned value जो भी हमने PMB डेवलप कर दी वो बेसिकली होगा. ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7वें मंथ में हमारी प्लान वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 7th मंथ इज दिस, और हमें जो बेसिकली वैल्यू चाहिए वो है, pardon me, I should have drawn 9 more straight, something like that. Okay, so that is 110. और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लान वैल्यू 10वें महीने में क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं, दिस इज 134. And what is the plan value after 3 months? 32. So this is a concept of planned value. And then earned value, so this is a snapshot of work progress at a given point in time, also known as budgeted cost of work performed. It reflects the amount of work that has actually been accomplished to date, expressed as the planned value for that work, and hence earned value is the planned, not actual cost to complete the work that has been done. इसका कंसेप्ट बड़ा आसान है कि जब भी आपकी कोई चीज जो प्लान थी वो अचीव हो जाए, लाइक आपकी प्लान वैल्यू थी इस जगह से हम कहते हैं 88, और ये आपने काम यहां तक कर लिया जो आप 6ठे महीने तक करना चाहते थे, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो प्लान वैल्यू है वो 88 है और अर्नड वैल्यू जो है वो भी आपकी 88 है. लेकिन अभी अगर हम देखें कि हमारी जो प्लान वैल्यू थी यहाँ वो थी 68 लेट से, और यहाँ थी हमारी प्लान वैल्यू 32, और यहाँ थी लेट से हमारी 20, और यहाँ थी 6 लेट से. तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे प्रोजेक्ट की, यहाँ तक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लान वैल्यू जो है वो 32 थी यहाँ, और यहाँ प्लान वैल्यू 68 थी. लेकिन जो अर्न वैल्यू है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें 32 है, लेकिन इस पॉइंट पे भी जो अभी हमारा अचीव हुआ है वो यही अचीव हुआ है, तो 32 है. सो 3 महीने के बाद भी हमारी अर्न वैल्यू 32 थी, और 4th मंथ के बाद भी हमारी अर्न वैल्यू 32 है, लेकिन प्लान वैल्यू 68 है. तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट है. आई रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन. अर्नड वैल्यू वो प्लान्ड वैल्यू होती है जो कि अचीव हो जाए. सो अगर हमने किसी वैल्यू को अचीव कर लिया है प्लान्ड वैल्यू, तो वो अर्नड वैल्यू बन जाएगी. जिस तरह के यहाँ हमारे पास अगर हम 4थे महीने में आ गए हैं, तो 4थे महीने के अंदर अभी हमने ये लेवल अभी अचीव नहीं किया, अभी हम यहाँ हैं और हमने अचीव किया हुआ जो कम्प्लीटली अचीव कर लिया वो ये वाला पॉइंट था. लेकिन 4थे महीने के अंदर हमने सिर्फ इतना अचीव किया है जो कि तकरीबन उतना ही है. अगर थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता तो ये अर्नड वैल्यू होती, लेकिन इस वक्त वो सेम है. और हमारी प्लान वैल्यू यहाँ क्या थी 68, और हमारे अर्नड वैल्यू यहाँ क्या है 32, क्योंकि हमने यही पॉइंट अभी तक इसी लेवल पे हमने जो है वो अचीव किया. सो ये एक चीज है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए. सो अर्नड वैल्यू इज दैट थिंग जो कि वो प्लान वैल्यू जो कि अचीव हो जाए. उसके बाद जो चीज आ जाती है वो कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट. और एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट, जो हमारा खर्चा आ चुका वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है. अब जिस तरह हम पिछली एग्जांपल देख रहे थे कि हमें हमारा 68 था प्लान वैल्यू, उसमें से 32 जो है वो अर्नड वैल्यू. तो अगर हो सकता है कि वो जो हमारी अर्नड वैल्यू 32 है वो हमने की हो 48 रुपीज के अंदर या 48 मिलियन के अंदर, वट एवर जो भी यूनिट्स हैं हमारे. सो जब हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं, सो एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इज एन
indication of the level of resources that have been expanded to achieve actual work performed to date. So actual cost is cost incurred to accomplish the work that has been done to date, and that's it. So जिस तरह के हम प्रीवियस स्लाइड पे भी बात कर रहे थे कि अब हमने अगर हम इसको देखें येलो लाइन को, तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो भी ठीक है, जो हमारी प्लान्ड वैल्यू वो भी ठीक है और अर्नड वैल्यू भी ठीक है। लेकिन चौथे महीने में आके अभी हमने अर्नड वैल्यू उतनी ही रखी है 32 और हमारी प्लान्ड वैल्यू 68 है और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो समथिंग 38 और समथिंग 36 इसके करीब है। तो अब हमने खर्चा ज्यादा कर लिया है, काम कम अचीव किया है और हम करना कुछ ज्यादा चाह रहे थे। सो ये तो हो गए 3 एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ आ जाते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि हम परफॉर्मेंस को कैसे निकालते हैं और फोरकास्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे इंडिसेस हैं, उसके लिए फिर हमारे कुछ एस्टिमेट्स हैं। जो मैट्रिसेस ड्राइव्ड हैं उनके अंदर एक मैट्रिक्स टाइप है वो कहलाता है वेरिएंस। सो एक तरह का वेरिएंस होता है शेड्यूल वेरिएंस। So a comparison of amount of work performed during a given period of time to what was scheduled to be performed. It determines whether a project is ahead or behind schedule. और शेड्यूल वेरिएंस निकालना बड़ा आसान है, ये परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है। That is and the formula for schedule variance is earned value minus planned value. अब याद रखें जो हमारे 3 एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से हैं? प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट। अब हमने इन तीनों के साथ खेलना है। तो अगर शेड्यूल वेरिएंस की बात की जाए, शेड्यूल का है तो शेड्यूल के हवाले से हमारा क्या कौन से हो सकते हैं, वो है अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू। सो आप अर्नड वैल्यू निकाल लें किसी जगह और उसमें से प्लान्ड वैल्यू माइनस कर दें, तो ये चीज आपको जो भी आंसर आएगा बता देगा कि आप शेड्यूल से हेड हैं या नहीं। अगर तो ये नेगेटिव आ जाता है, जिस तरह ईवी माइनस पीवी इज नेगेटिव, तो ये आपको बता देगा कि आप शेड्यूल से पीछे हैं। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप शेड्यूल से अहेड हैं, और अगर ये 0 आ जाए तो फिर आप बिल्कुल शेड्यूल के ऊपर हैं। इसी तरह शेड्यूल वेरिएंस जो है उसको परसेंटेज में भी किया जा सकता है। सो परसेंटेज शेड्यूल वेरिएंस विल बी इक्वल टू शेड्यूल वेरिएंस डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू। सो अ नेगेटिव वेरिएंस मींस द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल। अगर हम एक शेड्यूल वेरिएंस ले लें कि 32 ले लें, जिस तरह के अभी हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें अर्न वैल्यू 32 था और प्लान्ड वैल्यू जो है वो 48 था। सो 32 माइनस 48 विल गिव माइनस 16, सो अनफेवरेबल एंड वी विल हैव वी आर बिहाइंड शेड्यूल ओवर देयर। उसके बाद कॉस्ट वेरिएंस, जो शेड्यूल वेरिएंस के बाद दूसरी चीज है, और a comparison of the budgeted cost of work performed with the actual cost. It shows whether a project is under or over budget. So cost variance is equal to earned value minus actual cost. तो उधर हमने earned value planned value किया था माइनस अभी यहाँ हम earned value से actual cost कर रहे हैं। और इसको भी हम it shows whether the project is under or over budget, बड़ा सादा सा क्राइटेरिया है कि अगर हमारा EV माइनस AC से हम CV निकालते हैं और वो नेगेटिव है तो कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट अबव बजट जा रहा है, ओवर बजट जा रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है तो वो हम बिलो बजट हैं, और इक्वल है तो हम अकॉर्डिंग टू बजट हैं। कॉस्ट वेरिएंस को भी हम इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेगेटिव वेरिएंस का हमने बता दिया कि ये ओवर बजट की अलामत है। तो अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें जो हम ग्राफ पीछे देखते आ रहे हैं, सो 32 माइनस 40 माइनस 8, सो दैट इज अगेन unfavorable, and hence we can have minus 25% variance. और एक और तरह का जो वेरिएंस है वो कहलाता है वेरिएंस एंड कंप्लीशन, और उसका फार्मूला है BAC। बजट एट कंप्लीशन जो हमने पिछली स्लाइडों में देखा वो था 150, जो फाइनल हमारा आ रहा था प्लान्ड वैल्यू जो 12वें महीने में आ रही थी, उसको हम BAC भी बोलते हैं। और उसमें से माइनस EAC। अब EAC जो है वो बेसिकली है एक्सपेक्टेड एस्टिमेट एट कंप्लीशन। आई बेग योर पार्डन। सो एस्टिमेट एट कंप्लीशन का भी हमने जिक्र नहीं किया, उसको हम फिर फोरकास्टिंग में पढ़ेंगे, फिर हमें इस फार्मूला की अच्छी समझ आएगी।
but VAC is kind of a depiction that team, it shows that the team whether the project will finish under or over budget by subtracting EAC from the BAC. A negative variance indicates the units by which the project will be completed. In other words, if current trends continue, the project will cost an additional 37.5 units worth of resources that originally planned. इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारे मेट्रिसेस जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं और उनको हम कहते हैं इंडिसेस. ये वेरिएंसेस थे. अब हम इंडिसेस की बात करते हैं. एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, वो कहलाता है SPI, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स. सो SPI का फार्मूला, जिस तरह के हमारा शेड्यूल वेरिएंस का फार्मूला में दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, EV और PV, इस तरह SPI में भी दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, EV और PV, बट यहाँ हम अर्न वैल्यू को डिवाइड कर देंगे प्लान वैल्यू के साथ. और अगर तो ये लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड शेड्यूल है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये अहेड ऑफ शेड्यूल है. इसी तरह हमारा CPI है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. उसका फार्मूला हमारा है EV डिवाइडेड बाय AC, और इसके अंदर अगर हम ये 1 से कम होगा तो फिर हमारा ओवर बजट होगा, और अगर हमारा 1 से ज़्यादा होगा तो फिर हमारा बजट जो है वो से बेहतर होगा, हम अंडर बजट होंगे. सो एक और इंडेक्स है जो है TCPI, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स. TCPI इज इक्वल टू BAC माइनस EV और डिवाइडेड बाय BAC माइनस AC. It helps the team determine the efficiency that must be achieved on the remaining work for a project to meet a specified endpoint. And CSI, cost schedule index, is equal to CPI multiplied by SPI. So the farther CSI is from 1, the less likely project recovery becomes. जितना ये 1 से दूर होगा, यानी कि अगर हमारा हम बात करते हैं SPI है 0.8 और हमारा CPI भी 0.8 है. सो अब हमारा 0.64, तो ये हमारा CSI आ जाएगा, कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स. तो अब ये 1 वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये मुश्किल होगा. ऑन द अदर हैंड हमारा एक दूसरा है 1.1 इंटू 0.9. तो अब अगर हम CSI निकाल लें, so we will be having like 99 and 0.99. So that is more recoverable project than this. This is less probable to get recovered through even corrective actions and stuff like that. तो ये कुछ हमारे मेट्रिसेस हैं जो हम ड्राइव करते हैं. इसके अलावा हमारा एक बड़ा अच्छा मैट्रिक्स है कि हम टाइम एस्टिमेट एट कंप्लीशन करना चाहते हैं कि हमारे 4 महीने गुजर गए हैं, हमारा 6 महीने का प्रोजेक्ट था, जो हमारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3, क्या वो हमें बता सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट होगा. सो EAC T इज इक्वल टू BAC बाय SPI डिवाइडेड बाय BAC पर मंथ्स. सो ये बेसिकली एक हमारा है कि बजट एट कंप्लीशन और डिवाइडेड बाय SPI एंड डिवाइडेड बाय BAC बाय मंथ्स. सो ये हमें टाइम एस्टिमेटेड कंप्लीशन बता देता है. सो इट इंडिकेट्स द टाइम विच द प्रोजेक्ट विल टेक than originally planned if work continues at the current rate. And EAC जो estimated completion है, ये estimated completion for time था EACT, जिसका फार्मूला भी हमने देखा. इसके अलावा है EAC estimated completion का BAC by CPI. बहुत सारे फार्मूला होते हैं EAC के, लेकिन हम बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. एंड देन एक और इंडेक्स जो है जो ड्राइव्ड है, जो हमारा जो फोरकास्ट है, ये हम फोरकास्ट में जा रहे हैं, वो है एस्टिमेट टू कंप्लीट ETC. सो ETC इज इक्वल टू BAC minus EV divided by CPI. So this shows what the remaining work will cost. So ये टोटल हमारे जो हमने बात की एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स की बात की, 3 तरह के वेरिएंसेस की बात की, 4 तरह के हमने इंडिसेस की बात की, और फिर 3 तरह के फोरकास्ट की हमने बात की. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे लास्ट फ्यू मिनट्स में, फिर हम इस लेक्चर को समराइज करेंगे.
जो हमारा अगर हम देखें कि एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी 3 एलिमेंट्स हमें पता हैं, उसकी प्लान्ड वैल्यू हमें जो है वो पता है वो कितनी है, कि टोटल जो कंप्लीशन टाइम था वो 12 मंथ्स का था, जो हमारा बजट एट कंप्लीशन था वो हमारा 2,30,000 रुपये था। जो प्लान्ड वैल्यू है जो आज तक की हमने प्लान की हुई थी वो थी 55, और जो अर्न वैल्यू है वो हमने 49,000 अर्न कर ली है, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 56,000 है। हमने निकालना है शेड्यूल वेरिएंस, परसेंट शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, परसेंट कॉस्ट वेरिएंस, SPI, CPI, CSI, VAC, EACT, EAC, ETC, and also elaborate what these values mean to project manager. So schedule variance का फार्मूला हमें पता है EV minus PV, so 49 minus 50 minus 6,000, so इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि हम बिहाइंड शेड्यूल है, माइनस जो वैल्यू है वो हमें ये चीज़ बता रहा है, और 11% का वो हमें परसेंटेज में बता रहा है कि हम 11% बिहाइंड है। कॉस्ट वेरिएंस की बात करें सो फार्मूला है EV माइनस AC, सो वहाँ माइनस 7,000 है, और हम 14% जो है वो वेरिएंस है हमारा कॉस्ट के हवाले से। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की, तो हमारा SPI एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि वो बताता है कि हम कितनी हमारी चीज़ जो है वो, अगर हम यहाँ वैल्यूज़ देखें तो ये 11% का हमें ऑलरेडी इंडिकेशन हो रहा है, और यहाँ 14% का हमें इंडिकेशन हो रहा है। इसके अलावा हम इसको SPI और CPI से देखते हैं। सो SPI का फार्मूला है अर्न्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू, एंड दिस विल गिव सम। तो इसका हमें स्टैंडर्ड पता है कि 1 से अगर तो ये कम हुआ, जो कि लेस देन 1 है, सॉरी, सो 1 से लेस है दिस SPI, सो देन दैट इज बैड थिंग। अब हम देखते हैं कि 49,000 हमारा अर्न्ड वैल्यू है और हमारी प्लान्ड वैल्यू 55,000 है। तो अर्न्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0.891 आ जाएगा, जो कि 1 से लेस है। जब ये 1 से लेस हो गया तो दैट इज बैड, और कितना, 11% हम बिहाइंड है, बिहाइंड स्केड्यूल है। CPI कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्न्ड वैल्यू बाय एक्चुअल कॉस्ट, ये हमारा है 0.875, और ये हमें शो कर रहा है 12.5% का जो है वो कॉस्ट हम कर रहे हैं, ओवर बजट हम जा रहे हैं, क्योंकि ये भी लेस देन 1 है। सो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम इन दोनों का CSI निकालें, कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स निकालें, तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स का और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट विल गिव 0.891 एंड 0.875, दैट इज 0.78, सो दैट इज वे फ्रॉम 1, एंड हेंस रिकवरी चांसेस आर वेरी लेस। जिस तरह की हमने बात की थी कि अगर 1 से जितना आप दूर चले जाएंगे उतना ही रिकवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे फोरकास्टिंग मैट्रिसेस हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हमें अगर याद हो, अगर हम दोबारा जाके देखते हैं कि हमारा कंप्लीशन टाइम 12 मंथ्स है। अब हम देखते हैं कि इन पैरामीटर्स के साथ जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा। सो लेट्स सी। तो हमारा BAC हमारे पास आ चुका है, वो 2,30,000 है, वो इनपुट से पता चल जाएगा। SPI भी हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो 0.891। तो उसके बाद हमारा इसको डिवाइड करना है आपने BAC, और फिर इसको टोटल जो भी मंथ्स का बजट था, ये जितने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो 12 मंथ्स था। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें, सो वी विल हैव 13.47 मंथ्स, which is more than like ओरिजिनल 12 था। तो अगर आप 12 कैलकुलेट करें तो आपका प्रोजेक्ट जो है 1.47 मंथ्स का जो है वो
उसमें इशू है वो इतनी देर करेगा, यानी कि आपको तकरीबन 1.5 मंथ्स जो हैं अबाउट वो वेरिएंस रखनी पड़ेगी उसके अंदर। अब EAC के हमारी कॉस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हम 2,30,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ओवर बजट हम जा रहे हैं। तो आपका फार्मूला बड़ा सिंपल है कि BAC जो इनिशियल थी आपकी वो था 2,30,000 और उसके ऊपर उसको डिवाइड कर दें CPI से, सो दैट इज 0.875। तो फिर आपको पता चलता है ओके देन we are having 262.857, so 262,857 रुपीज़ जो है वो हमारी कॉस्ट है इंस्टेड ऑफ दिस। और अगर हमने इसकी एस्टिमेट टू कंप्लीशन निकालना है सो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ के जो बाकी का काम रह गया, कुछ काम तो हमने कर लिया और उसकी कॉस्ट जो हमें हमारे पास है दैट इज़ एक्चुअल कॉस्ट जो 56,000 है। तो एक तो ये है कि हम इसमें से 56 कर लें, माइनस कर दें, सो EAC माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो अभी तक हमारी हो, या दूसरा ये है कि हम एस्टिमेट टू कंप्लीशन का दूसरा फार्मूला लगा दें एंड देन वी विल गेट वैल्यूज़ जो बाकी का काम रह गया। और अगर हम उसको इसी प्रोपोर्शन से देखेंगे वो कितना है, तो वो फिर हमारा 2 लाख अगर इसी बर्न रेट के साथ, अभी हम ये यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इस फार्मूला के साथ कि कुछ काम ऐसे हैं जो हो सकता है जिनकी कॉस्ट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, जो हमने कॉस्ट ओवररन करना था वो हो चुका है। अब इस मेथड की ये एक फ्लॉ है या इसका ड्रॉबैक है कि ये सेम जो बर्नआउट है वो ले रहा है इस फार्मूला के तहत, कि अगर मिसाल है कि हमारी 6 एक्टिविटीज़ थी तो 4 जो हैं वो 2 जो हैं वो कॉस्ट ओवररन हो गया, तो हो सकता है अगली 2 में वो कॉस्ट से जो बजट से भी कम खर्चा हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि ये इस वक्त ये जो प्रेडिक्शन आज करेगा ये सिस्टम, वो ये कहेगा कि ये सारी ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो ये इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, लेकिन इसके फिर डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आप डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारे पास एक ETC आ गया है वो है 2,03,000, जो कि बाकी काम करने के लिए हमें पैसे चाहिए वो इतने हैं। सो जो एक और वेरिएंस जो अभी हमने बात की थी कि हम वेरिएंस एंड कंप्लीशन की बात करेंगे, वो है BAC माइनस EAC। सो 2,30,000 माइनस 32,857 का हमारे पास एक वेरिएंस जो है वो आ चुका है। इसके अलावा एक जो चीज़ थी, एक हमने TCPI पढ़ा था, और इसको अब हम देखते हैं, BAC माइनस EV और डिवाइडेड बाय BAC माइनस AC। सो and this should be divided by BAC minus AC, and let's have this is to perform TPC, we will have TCPI to complete performance index, so TCPI, and let's calculate that कि हमारा BAC जो था वो 2,30,000 था, ओके, एक 2,30,000 ठीक है, और अर्नड वैल्यू जो थी हमारी वो थी 49,000, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2,30,000 माइनस 56,000। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो हाउ मच वी गेट 30 and 19 and 181,000 divided by 30, 26,174. So we can have like 3, and 3 is like we can divide this thing, and if we let's give it a division over there through calculator, so 181, and we can divide this thing divided by 174, and we will have 1.04.
So what the team needs to do is they need to enhance their performance by 4% over there. So that 0.04 is equal to 4 by 100. 4% they increase their performance. So this is another very good index if they want to avoid that further burnout, or they want to remain within that budget. So they need to improve that thing over there. So this is very good analysis. We can use that. So there are some case studies, and once a project is 10% complete, the overrun at completion will not be less than the current overrun. Once a project is 20% complete, the CPI does not vary from its current value by more than 10%. And we can have this EVM matrices table, so we can use that. I suggest you to read and try to understand what does it mean. And let's have a summary now. In this lecture, we have discussed about earned value management, the concept, and then we have learned the steps how to get to earned value and how to develop PMP, how to create WPS and having the role of WPS in EVM, and how OBS is performed in and integrated with WPS. What are EV, PV, and AC, earned value, planned value, and actual cost, and how many matrices are there, indices are there, variances are there, and forecasts are there. And then we had carried out EVM class example. So this is all about from this lecture. This is kind of a revision class. We are preparing for one training which is coming up, and in next lecture we will be again revising a few basic concepts, and then we will proceed to the training thing. So thank you very much. This is all from now. Good luck and Allah Hafiz.